close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Good morning friends, I'm Deepak sir and welcome to my channel Deepak Sir's Chemistry Zone. आज मैं स्टैंडर्ड 11th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर ले रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट. यस, मोल कॉन्सेप्ट सबसे इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री में एक टर्म है. 2 साल आपको एक कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा. हर चैप्टर में शायद ये आपको काम आएगा. मोल. So try to focus on these lectures. Okay, I will discuss in detail what is all about the mole. A mole आया कहाँ से and how do we apply them. Okay, and in the coming lecture we will see the application of this mole concept in detail. So here we go with the mole concept. So today we will study very important concept of chemistry and that is mole concept. Now in chemistry there was a need of a unit of measurement of amount of substance. Shall we take one atom in fact or a collective number of atom? Because taking one atom was in fact impossible because we cannot measure, we cannot see one atom. Okay, we can't get its mass. So there was a concept of a collective number then. Just like 1 doesn't indicate a quantity of 12. एक स्कोर का मतलब होता है 20, एक ग्रॉस का मतलब होता है 144. वैसे ही केमिस्ट्री में एक शब्द आया मोल. ओके, दैट मीन्स 6.02 to 10 to the power 23 and this is called Avogadro's number. So ये कैसे आया? Okay, and what were the different scales in the history? I will discuss in very short. The very first scale that came up in 1805, okay, till 1820, hydrogen scale. Okay, Dalton and Thomson, and in 1820 Prout gave the unitary theory in which it was stated that mass of every atom is in the multiple of mass of hydrogen. लेकिन ये स्केल 1850 में चेंज हो गया. Berzelius and Cannizzaro gave the concept of oxygen scale. ऑक्सीजन स्केल इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन मिक्स कंपाउंड विद ओनली हाफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल whereas oxygen makes compound with almost all elements, okay, except very few. So taking oxygen on the standard scale और उसका मास 16 EMU था या यूनिफाइड मास. This was the mass of oxygen taken. Okay, and relative atomic mass of an element was given by this formula. Mass of an atom, that is one atom of the element upon the 1/16th mass of oxygen atom. So relative atomic mass is the unitless quantity, remember, because it is the ratio of the two masses. Okay, it is the mass of an atom with respect to the 1/16th mass of oxygen atom. But 1927 में 3 isotopes आए, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18. सो ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास एवरेज मास लेना दैट वाज इन फैक्ट इनकरेक्ट. ओके, एनी हाउ इट केप्ट ऑन बीइंग यूज्ड अंटिल 1961 जब कार्बन स्केल इंट्रोड्यूस हुआ. ओके, एंड कार्बन स्केल बेसिकली was given by SI system. Okay, so what is carbon scale? So in this carbon 12 isotope is chosen as a standard जिसका atomic mass, average atomic mass 12 unified mass लिया गया था and relative atomic mass is given by this formula, that is the mass of one atom upon 1/12 mass of carbon atom. ओके, और इस स्केल को लेने के पीछे कुछ लॉजिक भी था कि कार्बन का नेचुरली एक्टिव आइसोटोप 12 है C13. ओके, जिसमें कार्बन 12 इज 98.3 something percentage which is much higher compared to C13.
and therefore the average atomic mass of carbon, that is 12, okay, was very accurate, okay, in the measurement. And also carbon forms major compound with so many different elements, okay, इसलिए कार्बन स्केल आया 1961 में. Now let us understand कि what is mean by mole, okay, and how the different atoms are measured with respect to carbon. Okay friends, now we see what is mean by a mole. मोल जो शब्द है वो जर्मन लैंग्वेज से आया हुआ है. मोल का मतलब होता है पाइल और हीप और अ कलेक्शन, ओके. सो हम जिसे कहते हैं रेती का एक ढगली बनाया, तो जो ढगली हम बोलते हैं, राइट, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ द सैंड पार्टिकल्स टुगेदर, दैट इज कॉल्ड अ मोल इन जर्मन लैंग्वेज. सो कार्बन एटम जो होता है, रिमेंबर, उसमें 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स. अगर हम मास को इग्नोर कर दे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करते हैं, तो मास ऑफ वन एटम इज ड्यू टू द मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स, ओके. नाउ कार्बन 12, बिकॉज एक एटम को तो लेना असंभव था, तो लोगों ने 12 ग्राम कार्बन लिया और उसका पाइल बना, ओके. सो इस पाइल में दैट इज कॉल्ड मोल, सो इसको हम क्या बोलेंगे, 12 ग्राम्स पर मोल. तो इस मोल में टोटल कितना कार्बन एटम है, ये अगर हमें जानना है, तो व्हाट डेटा वी नीड द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. एंड एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कार्बन 12 का मास आया 1.992648 10 to the power minus 23 ग्राम. Thus we can find out the number of atoms of carbon 12, okay na, in 1 mole, that is 1 pile, okay. तो इस पाइल का टोटल मास कितना है, 12 ग्राम, okay, upon the mass of 1 atom. And if you simplify, we get this magic number जो हम जानते हैं, that is called Avogadro's number, okay. Now मोल का मतलब अब डिफाइन हो चुका है. इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ओके, दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज, इट कैन बी एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12. रिमेंबर, 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने एटम होते हैं उतने नंबर अगर होंगे किसी भी मैटर के अंदर, तो हम कहेंगे उसे 1 मोल. सो 1 मोल इज दिस मेनी पार्टिकल्स, रिमेंबर, ओके. एंड 1 मोल इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर. क्लियर? Okay friends, now we'll see what is meant by 1 EMU or 1 Dalton or unified mass. Okay, mass of one atom of C12 इतना आया था, 1.992648 10 to the power minus 23 grams. Now mass of one atom का मतलब क्या होगा, mass of 12 न्यूक्लियॉन, बिकॉज कार्बन हमने जो स्टैंडर्ड लिया है उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन का मास हम इग्नोर करते हैं, तो 12 न्यूक्लियॉन का मास इतने क्या बराबर हो गया, दैट इज 1.99, राइट, 2648 10 to the power minus 23 grams. Therefore the mass of one nucleon would be how much? Okay, so mass of one nucleon is equal to 1/12 into the mass of one atom of carbon 12. और ये फिगर इतना आता है, दैट इज 1.66054 10 to the power minus 24 ग्राम. दैट इज कॉल्ड 1 EMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, और 1 यूनिफाइड मास, और 1 डाल्टन. ओके, so 1 EMU या 1 Dalton is the mass of one nucleon. It can be a proton or it can be a neutron. Remember, neutron normally भारी होता है ये प्रोटॉन से, लेकिन यहाँ पे हम दोनों का मास सेम लेकर के चलते हैं, and that is 1 Dalton या 1 EMU, और this is the value in gram, 1.66 10 to the power minus 24 ग्राम. नाउ अब एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट फिर क्या आया फ्रेंड्स, लुक हियर, दिस इज द एटॉमिक मास बेस्ड ऑन कार्बन स्केल. अब एक न्यूक्लियन का मास हमें मिल गया. अब हर एक एटम में देयर आर
n नंबर ऑफ न्यूक्लियन, जैसे H एटम में एक होता है न्यूक्लियन, दैट इज 1 प्रोटॉन ओनली, ओके, तो उसका मास हम क्या बोलेंगे 1 EMU, ओके, दिस इज 1 into 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम, बिकॉज 1 EMU का मतलब क्या होता है 1/12, तो हम क्या बोलेंगे H एटम इज 1 टाइम हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। N14 उसका मास, क्योंकि उसमें 14 होते हैं न्यूक्लियंस, 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स, तो उसका मास कितना होगा एक एटम का 14 EMU। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स 1 एटम ऑफ N is 14 times heavier than 1/12 of the mass of 1 atom of carbon 12. Okay, so it's a relative atomic mass dear, और मैंने कहा था it is a unitless quantity, remember। एंड वैसे ही फिर मॉलिकुलर मास आया, जिससे हम CO2 लेते हैं, इट्स अ मॉलिक्यूल, इसमें एक से ज़्यादा एटम्स हैं, कार्बन में 12, O में 16 होता है, 2 O में टोटल 32, तो 44 न्यूक्लियंस होंगे टोटल, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा CO2 का 44 EMU। व्हाट डज दिस इंडिकेट? इट सिंपली इंडिकेट्स दैट CO2 इज 44 times heavier than 1/12 of the mass of 1 atom of carbon 12. So this is all about atomic mass unit and the mole concept dear. Now we'll know one more term, that is GAM, that is gram atomic mass. हम एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास में बात नहीं करते, नॉर्मली हम बात करते हैं एक कलेक्टिव नंबर ऑफ, मैंने कहा था वो होता है मोल। So mass of 1 mole of atom of an element is called gram atomic mass, और उसका यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल। जैसे H एटम का GAM क्या होगा 1 ग्राम पर मोल, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 न्यूक्लियन, ओके। सो N का कितना 14 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल N एटम्स, 1 मोल मतलब 6.022 10 to the power 23 एटम्स का मास इतना ग्राम होगा, ओके। वैसे ही O का क्या होगा 16 ग्राम पर मोल। इन द सेम वे GM का मतलब होता है ग्राम मोलर मास, दैट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, ओके। जैसे CO2 के अंदर टोटल 44 होते हैं न्यूक्लियॉन्स, तो उसका मास क्या होगा GMM 44 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल CO2 लोगे, 1 मोल का मतलब 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास करोगे आप, तो उसका वजन इतना आएगा, दैट इज़ 44 ग्राम्स। वैसे ही वाटर का 18 ग्राम पर मोल। And you should know the atomic mass of these elements, okay, these are in EMU। ग्राम पर मोल में आपको G पर मोल लगा देना है, that's it। जैसे H एटम का 1, C का 12, N14, O16, H32, Cl 35.5, ये हम देखेंगे कि इसका ये पॉइंट में क्यों है, ओके। सो सोडियम 23, पोटेशियम 39, okay, sorry, this is potassium 39, phosphorus 31, bromine 80, magnesium 12, calcium 40. Okay, so you must know atomic mass of these many atoms. Now we'll see a numerical based on mole concept. So the question is, calculate the number of moles, molecules and atoms in 1.8 gram water. The very first thing you need to find out, what is the molar mass of water. तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, इसमें 2 H एटम होता है, तो 2 का मास कितना होगा 2 ग्राम पर मोल, और O का होता है 16, सो इट इज़ 2 + 16 18 ग्राम पर मोल। नाउ एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, तो नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज W अपॉन द मोलर मास। सो मोल कितना आया, मास 1.8 ग्राम दिया हम क्वेश्चन में, अपॉन 18, दैट इज 0.1, ओके। एंड हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला दोस्तों, बिकॉज 1 मोल में कितना होता है एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, दैट इज 6.022 10 to power 23, तो n मोल्स में कितना होगा n इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो n मतलब मोल्स जो हमने यहाँ फाइंड किया है, सो इट इज़ 0.1 इंटू दिस,
तो 6.022 10 to the power 22 बिकॉज 0.1 मतलब 10 to the power -1, एक पावर कम हो गया. So this is how you have to attempt the question. Okay friends, so ये था number of moles and molecules of 1.8 grams of water में. तो पहले हमने मोल ढूंढा, दैट इज मास अपॉन मोलर मास, जो 0.1 आया, और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर. ओके, नाउ विल फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n, that is mole into atomicity into Avogadro's number. What is atomicity? Number of atoms in the formula of the compound. जैसे वाटर के अंदर H2O फॉर्मूला होता है, तो इसमें 3 एटम है, 2 H एटम है और 1 O एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 3. सो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 0.1, क्योंकि हमने मोल फाइंड आउट किया था 0.1 इंटू 3 इंटू 6.022 10 to the power 23. That comes out to be this much atoms. Okay, so this is the question about the mole concept, the simplest question. अब हम जाएंगे डिटेल में और थोड़ा डीप में जाएंगे अब. Okay friends, now we'll see one more question related to the mole concept. Calculate the number of atoms in 18 grams of glucose. Okay, now glucose का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. ओके, नाउ मॉलिक्यूलर मास कैसे ढूंढेंगे? तो इसमें 6 कार्बन है और कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 12. तो 12 6 जा 72. H का क्या होता है? 1. तो 12 1 जा 12. O का 16 होता है एटॉमिक मास, तो 16 6 जा 96. टोटल कितना हो गया? 180 ग्राम पर मोल. यानी कि एक मोल ग्लूकोज का मास कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल. ओके, सो मोल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? मास अपॉन मॉलिकुलर मास. मास हमें 18 ग्राम दिया हुआ है और मॉलिकुलर मास नीचे आएगा 180, दैट इज 0.1. नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? n, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिसिटी इनटू एवोगैड्रोस नंबर. सो वी कैन सी हियर एटॉमिसिटी इज 24. यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एटम. 6 कार्बन है, 12 H और 6 O atom. Okay, so 24 is the atomicity, and so our answer is 0.1 into 24 into Avogadro's number. These many atoms. Okay friends, so I hope you got the term mole concept. What is meant by mole? हम मोल ढूंढते कैसे हैं? मोल आया कैसे? Okay, everything I discussed. You don't have to go into history. Just you know one thing. 1 mole का मतलब एक कलेक्टिव फिगर होता है, एक नंबर होता है. That is 6.022 10 to the power 23. How to find a mole of a substance? You must simply divide the mass by the molar mass. Okay, and I have taken 2 examples to show you all this thing. In the coming lecture, guys, I'll be coming up with some more, detailed questions based on the mole concept. Okay. Till then, goodbye. And yes, please stay tuned with me on my channel, Deepak's Chemistry Zone. Thank you so much.